Welcome to my channel again. Myself Ovik Roy, your mathematics teacher and mathematics icon. Okay, so from this channel we are welcoming you, all the subscribers and all the students as well, those who are actually attending the classes very attentively, and those who are actually joining the classes, and those who subscribed my channel as well, and those who didn't subscribe my channel till now, just please subscribe my channel for better experiencing the different questions and the different solutions levels from the 11th class as well. Okay, so this class is for the 11th class. Actually there's in the previous lectures the function related discussions were there. So in this video just we are discussing about the function chapter. The different type or different pattern of questions will be solved in this video, in this lecture. So try to attend the class and try to actually solve this type of questions at your home, and I think this questions will be very much important for the board level exams, that means for the final exams. Okay, so as the 11th students, you have to be very much conscious about the homeworks and the practice. Okay, so it is not the class 10th level studies, just whatever you have done in the class 10th, that should not be repeated in class 11th as well. Okay, so in the science stream you have to be very much conscious and very much attentive towards your studies. Okay, and just in the beginning of this session, just I think you might have set the aim or goal regarding your life. So that's why a particular track should have been set in your mind first. Okay, so after that you have to move on this track as well. Okay, so I think as you all know, as a science students, we have to be very much laborious and very much attentive and very much actually aggressive towards our studies, and no negligency and no actually casual natures are applicable in this stream. Okay, so all the things and regarding that means this disattentiveness and this casuality, these all are deplorable. Okay, so that means no need to repeat these things. Whatever you have done in class 10th, just in class 11 you have to be very much sincere and serious about the studies as well. Okay, and whatever the lectures is going on, just you have to attend the classes, you have to attend the lectures as well, and you have to do the practice, okay, regarding the solutions whatever is provided in the various lectures as well. Okay, so in this lecture we are going to solve different types of questions from the function chapter, and after completing this relation and function chapter, I think a elaborate discussion regarding the relation and function chapter will be there. Okay, I will discuss this relation function concepts again, and the set related chapters will be started after that, and various questions and various solutions will be provided to you. For your conveniences, I am ready to give any kind of things, whatever I can. Okay, so in this lecture just write the first question, पेन और पेपर लो, उसके बाद जो है किसी का भी नाम लो, लेके स्टार्ट करो. ठीक है, जस्ट राइट द फर्स्ट क्वेश्चन. यह देखो, वो एक फंक्शन fx दिया जाएगा. ठीक है, एक काम दिया जाएगा आपको. अब जो है आपको इनपुट डालना है इसमें. ठीक है, इनपुट डालना है और आउटपुट निकाल के दिखाना है कि आउटपुट क्या होगा. और इनपुट क्या डालना है ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा. इट विल बी गिवन. ओके, सो जस्ट यू हैव टू पुट द इनपुट वैल्यू ऑन द गिवन fx and you will get the output value, and this output value will have to be found as your answer actually. Okay, so just write the first question here. Okay, just write here fx equals to so before starting this thing, just see this. If you have fx equals to suppose x square plus 1, this will be your fx. Okay, now f of 1, what will be your f of 1? 1 square plus 1, that is 2. F of 2, 2 square plus 1, that is 5. F of 3, that means 3 square plus 1 equals to 10. That means whatever is put in place of x, that should be replaced in the given output values also. That means here
in this place, in place of x square, 1 square, because we have put 1 in place of x. Here in place of x 2 is put, so you have to replace this x square by 2 square, and then 3 is put, so 3 square should be there. If you have f of 1 by x, in place of x you have to write 1 by x, that means 1 by x whole square plus 1, just like that. Okay, ऐसे ही आपको कंटिन्यू करना है. जो भी x के जगह जो भी आपको दिया जाएगा वही आपको पुट करके दिखाना है उन लोगों को. ठीक है, तो एक रिगार्डिंग दिस मैटर, जस्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व ए क्वेश्चन हियर. If fx equals to 3x to the power 4 minus 5x square plus 9, 3x to the power 4 minus 5x square plus 9, then find f of x minus 1. यहाँ पर आपको f of x minus 1 का वैल्यू निकाल के दिखाना है. तो आपको लिखना है, जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, गिवन ऑल टाइम ऐसे लिखना है, गिवन fx इक्वल्स टू 3x to the power 4 minus 5x square plus 9. ओके, सो अगर यहाँ पर f of x minus 1, x के जगह क्या बिठाया हम लोगों ने, x minus 1, दैट मीन्स यहाँ पर भी आपको x के जगह x minus 1 बिठाना है. पावर के जगह पावर रहेगा 5, ये x है, x minus 1 ऊपर पावर क्या है, स्क्वायर है, प्लस 9. तो आपको ये अभी सॉल्यूशन करना है नहीं? तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो x minus 1 होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं टू द पावर 4 को, और 5 ये तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मेशन होता है देखो, और ये प्लस 9. ओके, सो दैट इज 3 सेकंड ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस ट्वाइस x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5 प्लस 9. ओके, दैट मीन्स 3x टू द पावर 4, ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है. सो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. तो यहाँ पर देखो a b c के जगह में क्या है, रिप्लेस कर दो. तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस 2 इंटू b इंटू c प्लस 2 इंटू c इंटू a, just like that. और here the same thing will be repeated. सेकेंड ब्रैकेट दे दो इसको, ठीक है, और यहाँ पर 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5 और प्लस 9, that is plus 4. Just write this line, plus 4, and this third bracket close. Okay, then what will be the next part? Just you have to calculate this thing, f of x minus 1 equals to 3 second bracket x to the power 4 plus 4x square plus 1 minus 4x cube minus 4x plus 2x square. Okay, then ये ब्रैकेट ये जो है ये हटा दो, जरूरत नहीं है, माइनस 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 4. जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट दिस थिंग. अब देखो तो यहाँ पर x टू द पावर 4 का और भी कोई टर्म है, नहीं है, x टू द पावर 4 लिख दो. यहाँ पर देखो 4x का प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, दैट मीन्स 6x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, दैट मीन्स प्लस x स्क्वायर रहेगा. फिर उसके बाद माइनस 4x क्यूब, और भी है x क्यूब का टर्म, नहीं है, माइनस 4x क्यूब क्या. फिर उसके बाद माइनस 4x प्लस 10x, दैट मीन्स प्लस 6x. फिर उसके बाद देखो ये प्लस 1 प्लस 4, दैट इज प्लस 5. सो जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई 3x टू द पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 18x plus 15. This is the answer of x to the f of x minus 1. Very simple thing. One fx will be given, and just in place of x you have to put something. Okay, and what you have to put, that will be given in your question actually. Okay, so just see the question properly, and I think in the question the given the answer will be there.
Okay, indirectly the answer will be given. You will be given the value, the input value. That means the value of x in the question as well. Just you have to replace the value of x in the given fx expression. जो भी एक्सप्रेशन दिया जाएगा x के जगह आपको वही वैल्यू जाके रिप्लेस करना है, बस वही होता है कि नहीं? अच्छा, फिर उसके बाद और एक लिखो, if fx equals to x plus 1 by x, if fx equals to x plus 1 by x, if fx equals to x plus 1 by x, fx equals to x plus 1 by x, then prove that प्रूफ करना है आपको, ठीक है? f of x whole cube, that means then prove that f of x whole cube equals to fx cube plus f of 1 by x. ओके, ठीक है? 3 इंटू ये 3 इंटू यहां पर होगा 3 इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स. ओके, सो ये आपको प्रूफ करना है. सो हियर गिवन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस, बहुत ही सिंपल लेक्चर है ये. आपको ये सब लेक्चर, एक क्वेश्चन तो आएगा ही इस लेक्चर से, ठीक है? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ये तो गिवन है, ठीक है? अब आपको क्या निकालना है? एफ ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा? एफ ऑफ एक्स क्यूब. तो यहां पर एक्स की जगह क्या रिप्लेस करना है? एक्स क्यूब करना है. दैट इज एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब. ओके, फिर एफ ऑफ 1 बाई एक्स, ये क्या होगा? ये सेम ही होगा. इस एक्स के जगह में क्या आएगा? 1 बाई एक्स, और इस एक्स के जगह में भी 1 बाई एक्स, दैट इज ये एक्स हो जाएगा, है कि नहीं? अच्छा, तो सबका वैल्यूज निकाल लिया हम लोग. अब जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में पुट करके देखते हैं क्या आ रहा है आंसर, ठीक है? देखो अभी हियर लेफ्ट हैंड साइड में पुट करो. लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करो. क्या दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड? एफ ऑफ एक्स होल क्यूब. और एफ ऑफ एक्स क्या दिया है? ये दिया गया है. देखो, तो इसका होल क्यूब होगा. एफ ऑफ एक्स ये है ना, तो उसके ऊपर होल क्यूब मतलब इसका क्यूब होगा. अब ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, लिख लो. ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab इंटू ए प्लस बी. ये होता है फॉर्मूला. फॉर्मूला लिख लो, ठीक है? जस्ट राइट द फॉर्मूला हियर. ओके, ठीक है? नाउ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab. देखो यहां पर ये a है, 1 बाई एक्स भी है, 3ab इंटू ए प्लस बी, है कि नहीं? ठीक है? तो ये जो है, ये हम लोगों ने देखो वैल्यू निकाल के रखा था शायद. ये एफ ऑफ एक्स क्यूब होता है, और यहाँ पर तो एक्स एस कैंसिल ही है, 3. उसको भी हम लोगों ने निकाल के रखा था. देखो 1 बाई एक्स, एफ ऑफ 1 बाई एक्स. तो हो गया ना प्रूफ. इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड, है कि नहीं? वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है? ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जाओ. इफ एफ एक्स इक्वल्स टू, कितना सिंपल क्वेश्चन है. आप लोगों को सिर्फ ये देख के एक्स का वैल्यू दिया जाएगा, एक्स का वैल्यू देख के आपको जस्ट रिप्लेस करना है एक्स के जगह में, बस यही तो करना है, और कुछ नहीं करना है कि नहीं? ठीक है? वेरी सिंपल क्वेश्चंस. कौन बोलता है मैथ्स टफ होता है? मैथ्स का टफ होता है क्या? मैथ्स कुछ नहीं टफ नहीं होता है. मैथ्स एकदम इजी सब्जेक्ट है. आप लोग को ये गलत, ये जो है थिंकिंग, ये आप लोग है. मैथ्स एकदम इजी सब्जेक्ट है. इफ यू हैव द इंटरेस्ट, इफ यू एक्चुअली जस्ट इफ यू आर वेरी मच विलिंग टू सॉल्व, इफ यू आर वेरी मच विलिंग टू स्टडी द मैथमेटिक्स सब्जेक्ट एज वेल, देन that will be the most interesting subject in your life. I am telling you. Okay, I also actually scared about the mathematics subject as well in my students life. Okay, so whenever just I thought about the mathematics, I was so much actually scared about that.
Oh no, mathematics subject, it is very much tough. That means how could I solve this mathematics solutions and this 11th 12th standard questions, very tough it is. Okay, but in class 11 little bit disturbances was there, but from the mid session of class 11, just the interest built up within my mind. Okay, just I was solving the mathematics questions, mathematics chapter, different chapters and different solutions. Okay, just I was doing, just I kept doing the mathematics solutions, different types of solutions from the different books. So day by day, the interest was actually being built up in my mind. Okay, so any subject, the interest on any subjects can't be built in your mind without the practice, without the analysis. You have to analyze the subject as well. Okay, so if you analyze the subject, then you will realize that no, this subject is not the top subject as well. This is the most interesting subject. Okay, mathematics is most interesting subject. And remember this thing, if you have the clear concept, if you have the grip in mathematics subject as well, then in science stream, 11th and 12th studies, 90% above marks can be achieved easily. Okay, just remember this thing. If you have the clear concept, if you have the guts to face the mathematics subject as well, then and when this guts actually will be indulged inside of you, the guts actually can be inculcated by the thorough practice. If you are practicing well, then the confidence and the guts will be built up. Okay, so just try to solve different types of questions. Just try to actually see the lectures very well. Then I think day by day the interest will be built up. No problem. Just click on. If fx equals to 1 by twice x plus 1, if fx equals to 1 by twice x plus 1, साइड में कॉमा दिख लो को x not equals to minus half. ये क्वेश्चन है, x not equals to minus half. Then prove that. Then ये लेक्चर एकदम सिंपल है. Then prove that f of fx equals to twice x plus 1 by twice x plus 3. Twice x plus 1 by twice x plus 3. Okay. Provided that x not equals to minus 3 by 2. अच्छा ये बोलो तो ये दोनों चीज क्यों दिया गया? ये इसका मतलब क्या है? What is the uses of these two things? Just see, ये जो given function है, इसमें x का वैल्यू जो है माइनस हाफ पुट करो तो x की जगह माइनस हाफ पुट करो. 2 इंटू माइनस हाफ, 2 और 2 तो कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाता है? 0 हो जाता है ना. दैट मींस fx जो है वो देखो इन्फिनिटी हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है. तो गिवन fx जो है वो अनडिफाइंड तो नहीं हो सकता है. दैट मींस डिनोमिनेटर तो कभी 0 तो नहीं आ सकता है. तो यहाँ पर इसलिए उन लोगों ने दे दिया है कि x का वैल्यू तुम माइनस हाफ जो है वो चूज नहीं कर सकते हो. अगर यहाँ पर माइनस हाफ तुमने चूज कर लिए, दैट मींस ये जो गिवन फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा. दैट मींस यू कांट चूज द अनडिफाइंड फंक्शन एज वेल. जस्ट यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन क्वेश्चन on this fx. Here also the same thing. डिनोमिनेटर को देखो 2x plus 3, x का वैल्यू माइनस 3 by 2 पुट करो तो यहाँ पर माइनस 3 by 2, 2 कैंसिल, माइनस 3 रह जाता है, माइनस 3 प्लस 3 0 हो जाता है. इसलिए डिनोमिनेटर 0 ना हो, इसलिए उन लोगों ने दे दिया कि x not equals to minus 3 by 2. That means you can't choose minus 3 by 2 as well. Okay, so here given fx equals to 1 by twice x plus 3. देखो f of x यहाँ पर ये भी तुम साइड में लिख दो क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है, तो आपका ड्यूटी है ये लिखना. सो f of x, अब f of fx क्या होगा रे भाई? x के जगह क्या रिप्लेस करना है आपको? fx करना है. देखो तो 1 by 2 इंटू x के जगह क्या लिखना है? x के जगह आपको fx लिखना है प्लस 1, क्योंकि x क्या लिखा हुआ है x के जगह में? देखो fx लिखा हुआ है. दैट मींस इस x के जगह में भी आपको क्या लिखना है? fx लिखना है.
अब इक्वल्स टू साइन के बोथ साइड में जो भी काम करना है आप इक्वल्स टू साइन के बोथ साइड में ही करोगे। एक साइड में तुमने एक्स के जगह एफ एक्स लिख लिए और दूसरे साइड में नहीं लिखोगे तो ना इंसाफी होगा ना। ये लिखना है 1/2 इंटू इस एफ एक्स का वैल्यू देखो 1/2x प्लस 1 अब उसका थोड़ा कैलकुलेशन करना है। 1 ये देखो ये एलसीएम तो ये क्या होगा 2 + 2x प्लस 1 तो ये 2x प्लस 1 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा देखो 2x प्लस 3 है कि नहीं, हो गया ना प्रूफ। देखो 2 + 1 3 2x प्लस 3 हो गया प्रूफ। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कितने इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब आओ लिखो इफ fx इक्वल्स टू x माइनस 1/x प्लस 1। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखो इफ fx इक्वल्स टू x प्लस 1/x माइनस 1 सॉरी x माइनस 1/x प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन fx इक्वल्स टू x माइनस 1/x प्लस 1 तो यहां पर x नॉट इक्वल्स टू क्या लिखूंगा देखो तो -1 लिखूंगा क्योंकि अगर यहां पर -1 पुट कर दिया -1 प्लस 1 जीरो हो गया ना डिनोमिनेटर, तो जीरो तो नहीं हो सकता है डिनोमिनेटर। देन शो दैट एक ही लेवल का क्वेश्चन है f of fx इक्वल्स टू -1/x और साइड में कोमा देकर लिखो x नॉट इक्वल्स टू 0 होगा ऑब्वियसली, है कि नहीं। तो एक ही लेवल का देखो एक ही सेम पैटर्न का ही क्वेश्चन है यहाँ पर। तो आपको तो गिवन fx इक्वल्स टू क्या होगा x माइनस 1/x प्लस 1 है कि नहीं, ठीक है। तो अब जो है f of fx क्या होगा दैट मीन्स x के जगह आपको क्या रिप्लेस करना है fx करना है, तो इस x के जगह में भी fx लिखना है, इस x के जगह में भी आपको क्या लिखना है fx लिखना है। दैट मीन्स fx माइनस 1 एंड fx प्लस 1। अब fx का वैल्यू तो यहाँ आप लोग जानते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो बिठा दो x माइनस 1/x प्लस 1 ये -1 और नीचे होगा x माइनस 1/x प्लस 1 प्लस 1। तो यहाँ पर x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 और एलसीएम होगा x प्लस 1 होल बाई क्या रहेगा नीचे भी तो एक एलसीएम आएगा x प्लस 1 x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 बस हो गया। यहाँ पर 1 1 कैंसिल, यहाँ पर x x कैंसिल, यहाँ पर x प्लस 1 ये भी कैंसिल, तो क्या रहेगा देखो यहाँ पर -2/2x 2 2 कैंसिल दैट मीन्स -1/x आ गया ना प्रूफ। प्रूफ्ड, वेरी सिंपल क्वेश्चंस है कि नहीं। हो गया। फिर एक क्वेश्चन लिखो, हो गया। इतना सिंपल क्वेश्चंस हैं ये सब, क्वेश्चंस एकदम इजी क्वेश्चंस होता है कि नहीं। अच्छा फिर लिखो लेट f be defined by fx equals to x minus 4। let f be defined by fx equals to x minus 4। let f be defined by let fx equals to x minus 4 okay fx equals to x minus 4 and g be defined by and g एक दूसरा फंक्शन है g be defined by g और एक फंक्शन है सो gx इक्वल्स टू ऐसे आपको सेकंड ब्रैकेट देना है, ठीक है। सेकंड ब्रैकेट देके x² माइनस 16 बाई x प्लस 4 ठीक है। ये x नॉट इक्वल्स टू -4 x नॉट इक्वल्स टू -4 नीचे लैम्डा x इक्वल्स टू -4 हो गया। इफ क्वेश्चन लिखो इफ fx इक्वल्स टू gx देन फाइंड लैम्डा का वैल्यू आपको निकालना है कि नहीं। सो यहां पर देखो, यहां पर जो है fx एक दिया गया x माइनस 4,
gx एक दिया गया एक फंक्शन है, आप बोलोगे सर ये किस टाइप का gx है, किस टाइप का फंक्शन होता है, ये कुछ नहीं है, देखने से कुछ नहीं लगता है। यहाँ पर देखो ये एकदम सिंपल है, जब आपको x का वैल्यू -4 चूज नहीं करना है, -4 के अलावा आप जो भी चूज करें x का वैल्यू, काम कौन सा होता है, ये होता है x² - 16 by x + 4। दैट मींस x का वैल्यू -4 के अलावा आप एनीथिंग यू कैन चूज, नो प्रॉब्लम, बट द फंक्शन विल बी x² - 16 by x + 4। जब आपको इनपुट जो है -4 के अलावा दूसरा कोई भी वैल्यू चूज करना है, तब आपको ये जो फंक्शन है, फंक्शन क्या चूज करना है, x² - 16 by x + 4। घबराइए मत उसमें। जब x का वैल्यू -4 पुट करोगे, तब फंक्शन का वैल्यू क्या होता है, लैम्डा होता है। लैम्डा कुछ भी हो सकता है, एनी कांस्टेंट। लैम्डा का वैल्यू यहाँ पर इसलिए तो बोला गया, देखो फाइंड लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू निकालना है आपको। दैट मींस gx का वैल्यू लैम्डा होता है कब, जब इनपुट जो है, दैट मींस आउटपुट लैम्डा होता है, इनपुट x = जब -4 हो, है कि नहीं। अच्छा, यहां पर तो क्वेश्चन में देखो fx = gx तो दिया गया, तो यहां पर लिखो गिवन fx = x - 4 and gx = x² - 16 by x + 4 when x not equals to -4। ये लैम्डा x = -4। दैट मींस gx में x का वैल्यू जब -4 चूज करेंगे, तब gx का वैल्यू क्या आता है, लैम्डा, है कि नहीं। देखो तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, सिंस क्वेश्चन में तो दिया गया है fx = gx, क्वेश्चन में दिया गया है, तो क्या करें, दो फंक्शन सेम है। अब f ऑफ x के जगह अगर -4 पुट करूं, वहां पर भी x के जगह -4 पुट करना है आपको, दोनों साइड में तो करना है। देखो इसके जगह में अगर लेफ्ट हैंड साइड में x के जगह -4 पुट कर रहा हूं, राइट हैंड साइड में भी आपको x के जगह -4 पुट करना है, वहां पर -6 पुट नहीं करना है आपको। जो भी आपको यूज करना है, इक्वल साइन के दोनों साइड में करना है, ठीक है। एक साइड में आप x के जगह -4 पुट करें, दूसरे जगह में आप -6 पुट करेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो दैट मींस f ऑफ -4 g ऑफ -4। तो f ऑफ -4, देखो यहाँ पर fx क्या दिया गया है, ये, तो इसमें f ऑफ -4, दैट मींस x के जगह अगर मैं -4 पुट करूं, f ऑफ -4, x के जगह क्या पुट करना है, -4, क्या आएगा, देखो तो -4 दैट इज -8 है कि नहीं। दैट मींस ये -8 होता है आंसर। और g ऑफ -4, दैट मींस x के जगह अगर -4 पुट करेंगे, तो ये तो आंसर डायरेक्ट ही दिया गया ना, ये देखो लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा, तो लैम्डा का वैल्यू क्या मिला, लैम्डा इक्वल्स टू -8 हो गया। लैम्डा का वैल्यू तो निकालना था आपको, लैम्डा का वैल्यू क्या निकला, -8, है कि नहीं। कितना इजी क्वेश्चन है ये सब, है, ठीक है। फिर इफ f इज अ रियल फंक्शन डिफाइंड बाय, इफ f इज अ रियल फंक्शन डिफाइंड बाय, हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 seconds 11 seconds 12 seconds 13 14 15 हो गया। नाउ you go, if f is a real function, if f is a real function, f is a real function defined by fx equals to x minus 1 by x plus 1, x minus 1 by x plus 1, ठीक है। fx दिया गया है, फंक्शन दिया गया, then show that आपको शो करना है, show that f of twice x equals to 3 into fx plus 1 by 3 into fx plus 1 by fx plus 3, fx plus 3, ये आपको प्रूफ करना है। तो यहां पर देखो fx क्या दिया गया है, x minus 1 by x plus 1, सो f of twice x क्या होगा, x के जगह twice x पुट कर दो, twice x plus 1 हो गया।
नाउ अभी जो है राइट हैंड साइड थोड़ा शुरू करो तो एफ ऑफ ट्वाइस एक्स, इसका आंसर तो हम लोग को डायरेक्ट ही मिल गया ना, वो शुरू करो राइट हैंड साइड वाला 3 इंटू एफ एक्स प्लस 1 बाई एफ एक्स प्लस 3। तो 3 इंटू एफ एक्स का क्या है x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एफ एक्स प्लस 3, दैट मीन्स x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस 3। अब कैलकुलेशन थोड़ा करो तो क्या आएगा 3x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 1, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, ठीक है, और प्लस 1 बाई, यहाँ पर अगर एलसीएम करें x प्लस 1 x माइनस 1 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। तो ऊपर भी तो एलसीएम होगा ना, ऊपर भी तो देखो, नीचे x प्लस 1 और इधर x माइनस 1 प्लस 3x प्लस 3, यहाँ पर भी एलसीएम देखो x प्लस 1 आएगा, 3x माइनस 3 प्लस एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 कैंसिल, ठीक है। तो क्या आ रहा है 3x प्लस एक्स मीन्स 4x माइनस 2, और यहां पर देखो 3x प्लस एक्स दैट इज 4x, 4x प्लस 2, 4x प्लस 2, ठीक है, ठीक है ना। तो यहां पर देखो 2 कॉमन अगर ले 2x माइनस 1 और इधर 2 कॉमन ले 2x प्लस 1, 2 कैंसिल, तो ये किससे आ गया एफ ऑफ ट्वाइस एक्स है कि नहीं, देखो तो ट्वाइस एक्स माइनस 1 बाई ट्वाइस एक्स प्लस 1, ट्वाइस एक्स माइनस 1 बाई ट्वाइस एक्स प्लस 1, इसको क्या लिख सकते हैं एफ ऑफ ट्वाइस एक्स लिख सकते हैं। सो यहाँ पर ऐसे स्टेटमेंट लिखना है, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड, प्रूव्ड। इतना इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है एकदम, है कि नहीं, सिंपल है ना। नाउ जाओ और एक क्वेश्चन जाओ, करते हैं। इफ y इक्वल्स टू एफ एक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। आप लोगों को अगर मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहा है तो आपको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जो है जरूर करना है, ठीक है। विदाउट योर सपोर्ट आई कांट प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप, ओके। सो इफ a teacher wants to do something for the students, then that teacher needs some support from the student side. Without your support I can't move forward, okay. So as a student your duty is to support your teacher, is to support your favorite teacher, okay. So without your support I can't move anyway. So I don't need any kind of support from the external source, okay. I need only your support. The student support is the main thing for the teachers, okay. So a teacher, if a teacher have the moral support from the student side, then this teacher can be shine, okay. और आप लोगों को अगर ये लेक्चर्स, ये जो है क्लासेस पसंद आ रहा है तो आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वीडियोस का और लेक्चर्स का भी, ठीक है। सो नाउ नाउ if y equals to fx equals to, if y equals to fx equals to ax minus b by bx minus a, okay. Then show that x equals to f of y, x equals to f of y, ये आपको शो करना है, ठीक है। तो गिवन y इक्वल्स टू क्या दिया गया ax माइनस b बाई bx माइनस a, है कि नहीं। अच्छा,
तो यहाँ पर देखो जो प्रूफ है, यहाँ पर तो गिवन पार्ट में लेफ्ट साइड में y है, बट प्रूफ में गिवन पार्ट में क्या है, प्रूफ में लेफ्ट साइड में क्या है, x है। तो एक काम करते हैं, डायगोनल मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे क्या होता है। डायगोनल मल्टीप्लाई bxy माइनस ay इक्वल्स टू ax माइनस b, है कि नहीं। अब x रिलेटेड टर्म जो है bxy माइनस ax और इधर ay माइनस b, यहां पर x अगर कॉमन ले by माइनस a इक्वल्स टू ay माइनस b, इट मींस x इक्वल्स टू ay माइनस b बाय by माइनस a, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। देखो तो देखो तो यहाँ पर जो तुम्हें शो करना है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में तो x आ गया x। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो तो यहाँ पर क्वेश्चन में fx इक्वल्स टू ये दिया गया था, है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं x के जगह y पुट करूं तो क्या आएगा, ay माइनस b बाई by माइनस a, है ना। देखो तो ये x के जगह में अगर मैं y पुट करूं तो ये ay माइनस b बाई by माइनस a आता है कि नहीं। तो इसको हम लोग f ऑफ y लिख सकते हैं, ये एक्सप्रेशन को। तो यही तो आपको प्रूफ करना था, x इक्वल्स टू f ऑफ y। जो क्वेश्चन में f ऑफ x इक्वल्स टू ये दिया गया है, तो इसमें x के जगह y पुट करके देखते हैं ना क्या वैल्यू आता है, क्योंकि प्रूफ में तो f ऑफ y आना है। तो f ऑफ y पुट करके राफ में हम लोगों ने देखा, राफ में ay माइनस b बाई by माइनस a। ओ अच्छा, ये f ऑफ y मतलब ये आंसर आना चाहिए। तो ये आंसर तो आ गया हम लोग का। देखो तो ay माइनस b बाई by माइनस a, इसको तो हम लोग f ऑफ y तो लिख सकते हैं। तो हम लोग ने लिखा f ऑफ y, लेफ्ट साइड में तो x तो ही, तो यही तो आपको प्रूफ करना था। ठीक है, हो गया। देन लिखो, इफ fx इक्वल्स टू, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इफ fx इक्वल्स टू ट्वाइस x बाई 1 plus x square, okay, then prove that f of tan theta equals to sin 2 theta। ये आपको प्रूफ करना है। f of x तो दिया ही गया, आपको क्या बिठाना है, x के जगह में tan theta बिठाना है। तो ऐसे लिखो, गिवन fx equals to twice x by 1 plus x square। नाउ अकॉर्डिंग टू योर प्रूफ में क्या दिया गया है, f ऑफ tan थीटा, दैट मीन्स x के जगह आपको tan थीटा सब्स्टिट्यूट करना है। दैट मीन्स x के जगह आपको tan थीटा लिखना है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये जो है क्लास 11th ट्रिगोनोमेट्री में एक फॉर्मूला है, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला होता है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला जो है साइड में आप लोग लिख सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, लिख लो, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। हम लोग जब ट्रिगोनोमेट्री करेंगे तब ये सब डिस्कस जो है वो तो ऑब्वियसली करेंगे। आप अभी जस्ट लिख के रखिए, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, आ गया प्रूफ। तो कितना सिंपल एक्सरसाइज है ना, है कि नहीं। तो यहाँ पर वेरी सिंपल क्वेश्चंस हैं, बट इसमें इससे एक क्वेश्चन तो आएगा ही, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। ओके, तो देखो इसके बाद हम लोग will move to the domain and range of a particular function। domain and range। domain क्या होता है, मैंने बोला था आपको, एक फंक्शन जो है काम होता है। domain मतलब इनपुट, domain मतलब क्या है, इनपुट। तो आपको इनपुट चूज करके fx में बिठाना है, आउटपुट क्या निकलेगा वो बताना है आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग को क्या करना है, हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस डोमेन एंड रेंज। जो आउटपुट है ना, ये आउटपुट वर्ड, इसको बोला जाता है रेंज, याद रखना। ठीक है, तो दैट मीन्स एक फंक्शन दिया जाएगा, फंक्शन में आपको डोमेन वैल्यूज निकालना है। दैट मीन्स इनपुट क्या क्या आप चूज कर सकते हैं वो आपको निकालना है, या फिर आपको आउटपुट क्या क्या निकलेगा वो आपको निकाल के दिखाना है। फंक्शन दिया जाएगा fx इक्वल्स टू समथिंग, कुछ गिवन रहेगा आपको, या फिर इनपुट निकाल के दिखाना है। दैट मीन्स x का वैल्यूज क्या क्या हो सकता है यहाँ पर आपको निकाल के दिखाना है, और यू हैव टू फाइंड द आउटपुट वैल्यूज। आउटपुट क्या क्या होगा वो आपको निकाल के दिखाना है। तो दैट मीन्स ये जो पार्ट है
थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, थोड़ा टफ भी है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स फॉर द डिफरेंट लेवल effects, the domain and range will have to be found in the different way. Okay, so sometimes a very complicated actually this function used to be given to the students, and actually in that kind of questions students used to be stuck for finding the domain and range of that particular function. Okay, so don't be confused, don't actually be scared about that. Just I am here just for providing that kind of knowledge and that kind of actually this tricks to find the domain and range of a particular function. So in our next video I will discuss the domain and range of a particular function. That means how to find the domain and range of a particular function. Domain means, just remember this word, domain means input values, range means output values. ओके, तो एक फंक्शन दिया जाएगा, वो फंक्शन देख के हम लोग को बोलना है कि इनपुट क्या क्या चूज कर सकते हैं यहाँ पर, है कि नहीं, और आउटपुट क्या क्या चूज कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, सपोज आपको f ऑफ x इक्वल्स टू 1/x दिया गया, ठीक है। आपको बोलना है कि यहाँ पर इनपुट क्या क्या चूज कर सकते हैं हम। इनपुट मतलब x का वैल्यू। तो देखो तो यहाँ पर फंक्शन में x का वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूं नीचे, पूरा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा ना, तो अनडिफाइंड तो नहीं हो सकता है। दैट मीन्स यहाँ पर x का वैल्यू 0 हम लोग चूज नहीं कर सकते हैं। विदाउट दिस 0 वी कैन चूज एनीथिंग। x का वैल्यू 0 के अलावा हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू कुछ भी चूज कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा, यहाँ पर डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा, रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हम लोग यहाँ पर चूज कर सकते हैं। बट कौन सा चूज नहीं कर सकते, 0 चूज नहीं कर सकते। लिखने का स्टाइल ये होता है, इसको बोला जाता है सिंगल टोन सेट। सिंगल टोन सेट मतलब एक सेट में एक ही एलिमेंट रहेगा, तब इसको सिंगल टोन सेट बोला जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सब रियल नंबर आप चूज कर सकते हैं, ठीक है, बट एक्सेप्ट 0 चूज नहीं कर सकते, ठीक है। इसका मतलब ये होता है डोमेन ही है। तो रेंज क्या होगा, रेंज तो यहाँ पर ऑल द रियल नंबर्स होगा। रेंज यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर आ सकता है। x का वैल्यू 0 के अलावा आप कुछ भी पुट करें यहाँ पर, रेंज तो यहाँ पर सब रियल नंबर में ही आएगा, है नहीं, ठीक है, हो गया। तो रेंज यहाँ पर ऑल द रियल नंबर्स, ऐसे लिख लो, रेंज क्या होगा, ऑल रियल नंबर आएगा, ठीक है, हो गया। सो ऐसे ही आपको fx एक दिया जाएगा, आपको देख के fx को देख के डोमेन बताना है और रेंज भी बताना है। देखो यहाँ पर इजीली हो गया ना, क्वेश्चन देख के समझ में आ जाता है। बट whenever just we will solve this type of questions, the different fx will be given. Sometimes a very complicated fx used to be given to you, and you will be asked to find the domain and range of that particular function. Okay, so whenever just you will solve this type of questions, then you will see that for the different types of functions, different domains are coming and different ranges are coming. Okay, so whenever we will solve, we will discuss this part. We will solve this type of questions in our next video. Okay, so just till then, stay safe and stay healthy. Okay, bye and Jai Hind. सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, और वीडियो को अगर पसंद आ रहा है तो लाइक भी कीजिएगा। ओके।